Hello everyone, welcome to our YouTube platform Concept and Fact of Life Sciences. Today in this video, we are going to discuss about the process of gluconeogenesis. Now the gluconeogenesis, it is the process of synthesization of glucose from any other source than the carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा किसी भी सोर्स से अगर आप ग्लूकोज जनरेट करते हैं, the process is called as gluconeogenesis. Now the process of gluconeogenesis, it is entirely different in case of plants and animals. Plants, they have ability to convert the lipid into the glucose through a specific type of TCA or modified version of TCA cycle that is called as glyoxylate cycle, जिसके बारे में अगर आगे अपन बात करेंगे. But in case of animals, which stores the food in the form of glycogen and will carry out the breakdown of glycogen whenever the glucose is required. But under the emergency condition, the animals, they don't have ability to convert the fatty acid into the glucose because they don't have the glyoxylate cycle. Now, for animals, the only source of energy or only source of glucose under the emergency condition, it is the amino acid. So बात करते हैं पहले एनिमल्स की, फिर बात करेंगे अपन ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की. Now in case of animals, the gluconeogenesis, it is the complete reversal of glycolysis. जो अपन ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी थी उसी का रिवर्सल है gluconeogenesis, except the three irreversible step. देख लेते हैं कौन से इरिवर्सिबल स्टेप थे. तो जब अपन ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी थी तो वहां देखा था कि जो सारे के सारे स्टेप्स थे वो रिवर्सिबल थे. तीन स्टेप्स को छोड़ के कौन से तीन स्टेप थे? फर्स्ट वाज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट थ्रू द एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोकाइनेज. सेकंड वाज द एक्टिविटी ऑफ PFK1, it was irreversible, and third one, it was the conversion of phosphoenol pyruvate into the pyruvate. The reaction was carried out by the enzyme pyruvate kinase and it is a irreversible reaction. Generally जो kinase activity होती है it is irreversible. But वहां पे अपन ने स्टेटमेंट भी दिया था कि this kinase it is a unusual kinase, इसकी जो एक्टिविटी है वो रिवर्सिबल रहती है. सो यहाँ पे तीन स्टेप हैं जिनको अपने को रिवर्स करना है. तीन इरिवर्सिबल स्टेप है जिनको रिवर्स करना है टू कन्वर्ट द पायरुवेट इनटू द ग्लूकोज. फर्स्ट ये रहेगा क्योंकि अपन रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, सेकंड ये रहेगा और थर्ड स्टेप ये रहेगा. देखते हैं कन्वर्जन कैसे होता है. तो अगर बात करें तो अपने पास में वी आर हैविंग द पायरुवेट इनटू द साइटोप्लाज्म ड्यू टू द glycolysis. Now pyruvate, it is a 3 carbon compound. So we are having the pyruvate due to the glycolysis within the cytoplasm, and the condition of cell is like that we are having enough amount of ATP but we are low in glucose. So you need to convert the remaining amount of pyruvate into the glucose because you are in the glucose poor stage. तो उसके अंदर क्या करना है अपने को? वी हैव टू रिवर्स द फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप एंड द फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप वाज द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू द फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है. कैसे कन्वर्ट करते हैं बात करते हैं. वी नीड टू ट्रांसपोर्ट दिस पायरुवेट इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट. फॉर दिस प्रोसेस, as we all know that the mitochondrial inner membrane, they are having the transporter for the pyruvate, जैसा आपने TCA cycle में पढ़ा था. Within the mitochondria, the pyruvate will convert into the oxaloacetic acid through the carboxylation. Because as we know that pyruvate, it is a 3 carbon molecule, while the oxaloacetic acid, it is a 4 carbon molecule. Carboxylation होगा, carbon dioxide, carbon को add करेंगे in the form of carbon dioxide. The enzyme which carry out this reaction is the pyruvate carboxylase, and you have to invest the energy in the form of ATP because you are in the ATP rich state. आपको ग्लूकोज की जरूरत है तो पायरुवेट को ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया. नेक्स्ट स्टेप, देयर इज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज व्हिच कन्वर्ट्स द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इनटू द मैलेट. Malate, it can comes out from the mitochondria into the cytoplasm. As we know that the mitochondrial inner membrane also have the transporter for the malate. So the malate is now within the cytoplasm. Within the cytoplasm, the malate will convert it again into the oxaloacetic acid through the activity of enzyme malate dehydrogenase.
Now this oxaloacetic acid in the presence of enzyme pep carboxykinase, it will convert into the phosphoenol pyruvate. And as we already stated that the phosphoenol pyruvate, it is the most energy rich compound in the biological system, we can say. So when you are converting a less energetic form into the more energetic form, you need to invest the energy, and the energy is invested in the form of GTP, which will convert into the GDP, and the oxaloacetic acid will convert into the phosphoenol pyruvate. Now from phosphoenol pyruvate, so first irreversible step, it is reversed. Now we are having the phosphoenol pyruvate. This phosphoenol pyruvate will convert into the fructose 1,6 bisphosphate. क्यों? क्योंकि अपने को पता है यहां से लेकर के फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से लेकर के जितने भी स्टेप हैं दे आर रिवर्सिबल स्टेप। वापस स्टॉप कहां पे होगी? प्रोसेस स्टेप स्टॉप हो जाएगी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, बिकॉज वी हैव टू रिवर्स द रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय द PFK1। ये इरिवर्सिबल स्टेप है, तो इसको कैसे रिवर्स करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। So for this we are having another enzyme which is called as fructose 1,6 bisphosphatase. Simply फर्स्ट और सिक्स्थ पोजीशन पे जो फॉस्फेट है उसमें से अपने को जो फर्स्ट पोजीशन का फॉस्फेट है उसको रिमूव कर देना है। तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अपन यहां से रिमूव कर देंगे और ये फ्रक्टोज 1,6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ ड्यूरिंग दिस मींस व्हेन वी कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो आपका ग्लाइकोलिसिस है वो स्टॉप रहना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए। अगर वो होता रहेगा तो वही पाइरुवेट से आप ग्लूकोज से आप पाइरुवेट बनाते रहेंगे एंड यू विल लीड टू द मोर ग्लूकोज डेफिशिएंट कंडीशन। सो इस कंडीशन में आपको ग्लाइकोलिसिस को स्टॉप करना है, तो उसके लिए पीएफ की फर्स्ट की एक्टिविटी है, इसको आपको इनहिबिट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? We are under the low glucose condition. The islet of pancreas, they will release the hormone glucagon. The receptor for this glucagon, it is the adenylate cyclase, which convert the ATP into the CAMP. This CAMP, it will activate the protein kinase A, and this protein kinase A, it will inhibit the PFK1 simply. अब ये प्रोसेस क्या होता है वहां अपन ने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस के अंदर कि द pKa इट इज गोइंग टू फॉस्फोराइलेट द एंजाइम PFK2 phosphatase activity will switched on, fructose 2,6 bisphosphate will convert into the fructose 1,6 bisphosphate, and the more amount of fructose 1,6 bisphosphate will going to inhibit the enzyme PFK1. So अगर पूरा प्रोसेस आपको पढ़ना है तो मेरे पहले के वीडियो देख सकते हैं। तो सिंपली we can say under the low glucose condition pKa will get activated and it will going to inhibit the enzyme PFK1, जिसकी वजह से अब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो स्टॉप ही रहेगा। So we are having fructose 6 phosphate. Fructose 6 phosphate अपने आइसोमेरिक फॉर्म 6 कार्बन की कीटोन शुगर, फ्रक्टोज 6 कार्बन की एल्डिहाइड शुगर, ग्लूकोज कन्वर्ट हो सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देगा। नाउ दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट will further convert into the glucose again by a specific enzyme which is called as glucose 6 phosphatase। क्योंकि ये रिएक्शन, ये स्टेप इरिवर्सिबल है, इसको रिवर्स करना है अपने को। एंजाइम लगेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, 6 पोजीशन से फॉस्फेट रिमूव कर देगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। आपने पाइरुवेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सेल को रिक्वायरमेंट इस टाइम पे ग्लूकोज की है। वी आर ऑलरेडी इन द एनर्जी रिच स्टेट। नाउ वी आर हैविंग, as we already stated, that in case of animal the only source of glucose under the emergency it is amino acid. So for this we are having some glucogenic and ketogenic amino acids. Any amino acid which can convert into the malate, or we can say into the alpha ketoglutarate, oxaloacetic acid, और पाइरुवेट के थ्रू अगर मैलेट में कन्वर्ट हो पा रहा है, the amino acid they are called as glucogenic, and amino acid which will convert into the ketone bodies they are called as ketogenic. So we are having glucogenic amino acid, all the essential amino acid
जो आप 20 अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं, एक्सेप्ट ल्यूसिन एंड लाइसिन, ल्यूसिन और लाइसिन को छोड़कर सारे के सारे जो अमाइनो एसिड है दे हैव एबिलिटी टू जनरेट द ग्लूकोज। नाउ कीटोजेनिक दे आर ल्यूसिन एंड लाइसिन, बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक मींस ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, कीटोन बॉडीज का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये होते हैं आइसोल्यूसिन और ट्रिप्टोफैन। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। नाउ कोई भी चीज मैलेट में कन्वर्ट हो रही है तो अपन उससे ग्लूकोज बना सकते हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं अपन? बिकॉज वी आर हैविंग मैलेट ओवर हियर एंड विद इन द साइटोप्लाज्म द मैलेट इज हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज एंड द प्रोसेस कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो आप किसी भी चीज को मैलेट में अगर कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो सकता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल। सो एस्पार्टिक एसिड है या एस्पार्जिन है, दे कैन कन्वर्ट इनटू द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलेट में कन्वर्ट हो सकता है बिल्कुल। सिमिलरली सिस्टीन, एलेनिन, ग्लाइसिन, सीरीन और थ्रियोनिन they have ability to convert into the pyruvate and the pyruvate can convert into the malate, जो अपने को पता है। Next, some amino acid like glutamate, glutamine, proline, arginine and histidine, they have ability to convert into the alpha ketoglutarate and the alpha ketoglutarate can also give rise to the malate, so जिससे अपन ग्लूकोज का सिंथेसाइजेशन कर सकते हैं। Similarly, the amino acid like isoleucine, valine and methionine, they will first convert into the succinyl coenzyme and succinyl coenzyme will convert into the malate. So ये जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं they can form different intermediates that can further lead to the formation of malate and the malate we have ability to convert the malate into the glucose और जो process है वो gluconeogenesis कहलाता है। So सीधी सी बात है कि in case of animals the source of glucose under the emergency condition it is the अमाइनो एसिड। नॉर्मल कंडीशन में अपन कहते हैं कि वी आर हैविंग द ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपन ग्लूकोज को स्टोर करते हैं और जब जरूरत होती है तो प्रोसेस बाय व्हिच नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस उससे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, कंपेयर करें इसको प्लांट्स के साथ में, सो द प्लांट्स जैसे अपन ने कहा दे हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट द फैटी एसिड और लिपिड इनटू द ग्लूकोज। एनिमल्स में ये एबिलिटी नहीं होती है। एनिमल्स की केस की अगर बात करें तो एनिमल्स में अगर बीटा ऑक्सीडेशन होगा एसिटाइल कोएंजाइम ये बनेगा, तो एसिटाइल कोएंजाइम से आप एनर्जी जनरेट कर सकते हैं जैसा अपन ने पहले बीटा ऑक्सीडेशन में पढ़ा था। बट उस एसिटाइल कोएंजाइम ए से आप ग्लूकोज नहीं बना सकते। बट द प्लांट्स दे हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट द लिपिड्स और फैटी एसिड इनटू द ग्लूकोज थ्रू ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइकिल व्हिच इज कॉल्ड एज ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। अभी ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है क्या? इट इज सिंपली द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ टीसीए साइकिल। जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडिक साइकिल अपने टीसीए साइकिल पढ़ी थी उसका मॉडिफाइड वर्जन है एंड इट अकर्स विद इन ए स्पेशल टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम एंड दीस पेरोक्सिसोम इन प्लांट्स दे आर कॉल्ड एज ग्लाइऑक्सिसोम। तो ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ टीसीए साइकिल चलता है। क्योंकि अपन ने पढ़ा था जब बीटा ऑक्सीडेशन बात की थी कि एनिमल्स के केस में जो बीटा ऑक्सीडेशन है उसकी साइट माइटोकॉन्ड्रिया रहती है, जबकि अपन कहते हैं प्लांट के केस में वी आर हैविंग द पेरोक्सिसोम व्हिच कैन बी द साइट फॉर बीटा ऑक्सीडेशन। सो वी आर हैविंग द फैटी एसिड ओवर हियर, अपॉन बीटा ऑक्सीडेशन दे विल फॉर्म द एसिटाइल कोएंजाइम। इसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप बीटा ऑक्सीडेशन एक बार क्लियर कर लीजिए, फिर ये आराम से समझ में आ जाएगा कि फैटी एसिड अपॉन बीटा ऑक्सीडेशन विल फॉर्म द एसिटाइल कोएंजाइम। Now the plants they have ability to convert this acetyl coenzyme into the glucose. Animals में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? Because they are not having the TCA modified TCA cycle that is called as glyoxylate cycle. अब glyoxylate cycle में क्या होता है? The oxaloacetic acid which is a 4-carbon molecule, it will along with the acetyl coenzyme in the presence of enzyme citrate synthase, it will convert into the सिट्रिक एसिड और सिट्रेट। ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिडिक साइकिल थी, वहां पे भी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था सिट्रिक एसिड ही बन रहा था। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिडेज इट विल कन्वर्ट इनटू द आइसोसिट्रेट। तो 4 और 2 6 कार्बन मॉलिक्यूल इसके आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज आइसोसिट्रेट। नाउ आइसोसिट्रेट का ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइज आइसोसिट्रेट लाइज। तो ये क्या करेगा?
ये एक पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा जिसे अपन कहेंगे ग्लाइऑक्सिलेट, और एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएगा जिसे अपन कहेंगे सक्सिनेट। सो इसका ब्रेकडाउन होगा 6 कार्बन का, एक 2 कार्बन का और एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। जो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बना है along with another molecule of acetyl coenzyme which is of 2 carbon, it will form the malate which is of a 4 carbon molecule. Or malate, as we all know that it have ability to convert into the glucose. So plant के केस में we have ability to convert these fatty acid or acetyl coenzyme A into the glucose because we are having a special type of cycle which is called as glyoxylate cycle, which occurs within the glyoxysome, and it is simply the modified version of a TCA cycle. So plant have ability to convert the fatty acid into glucose while the animal they don't. Animals के केस में the source of energy under the emergency condition it is amino acid. Plant के केस में ये fatty acid भी हो सकते हैं. So this is all about the process of gluconeogenesis. Thank you very much.